नमस्कार दोस्तों, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग के एमसीक्यूज लेके आई हूँ. लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली दैट दिस माइक्रोवेव इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट कवर्स ऑल द subjects like which is related to electromagnetics like EMFT, antenna, you can say microwave. तीन सब्जेक्ट तो इसके अंदर वैसे ही कवर हो जाते हैं. माइक्रोवेव कम्युनिकेशन, ओके. तो ये सब आपको देखना है. अब आप इसमें हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये इट इज सेइंग a permanent magnet is made by placing the magnetic material in a strong magnetic field. Strong magnetic field मतलब B is equal to mu H है, okay. Under this strong magnetic field आपका जो permanent magnet है it is made. So ये इसका आंसर क्या होगा? इट इज ट्रू because this is absolutely true that a permanent magnet is can only be constructed by placing the magnetic material under a strong magnetic field and after removing the field to leave the material magnetized in a remanent state. जैसे आप as soon as you just remove this magnetic field it leaves the material magnetized in a remanent state. इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है if a narrow band impedance match is required then more multi-section transformers must be used. false है ये स्टेटमेंट. हमने एमटेक में पढ़ा था पोजार की बुक में, आपने डेविड पोजार की बुक में, कि if a narrow band impedance match is required, for a narrow band impedance match is required. what is narrow band? Where the bandwidth is narrow. bandwidth कैसी है? पतली है, narrow है, it is not wide. So for a narrow band impedance match a single section of quarter wave transformer is used. multi section नहीं चाहिए, single section of quarter wave transformer is required. single section of quarter wave transformer is required. So when a wide band impedance match is required, okay, when there is a wide bandwidth in order to match the impedance then multi section quarter wave transformers is required for impedance matching. याद रखिए, for wide band impedance match, for wide band impedance match multi section quarter wave transformers are required. okay. next question है effective dielectric constant of a microstrip is given as. देखिए ये तो आपको फॉर्मूला है जो आपको रटना पड़ेगा. तो इसका जो इफेक्टिव डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका जो ऑप्शन होगा, ये आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन वन इज ट्रू. एप्सिलॉन आर प्लस 1/2 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1/2 इंटू 1/√1 प्लस 12d/w. दिस रिलेशन क्लियरली शोज जो इफेक्टिव परमिटिविटी है इट इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑफ माइक्रोस्ट्रिप लाइन. जैसे ये रिलेटिव परमिटिविटी का भी फंक्शन है, ये इफेक्टिव विड्थ का भी फंक्शन है, एंड थिकनेस ऑफ द सबस्ट्रेट इसका भी फंक्शन है. ये विड्थ हो गई W, D हो गई थिकनेस. ओके. अब तो ये आपको फॉर्मूला रटा होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर टू बी स्टेबल आइदर द इनपुट or the output impedance must have a real negative part. See, for a transistor amplifier to be stable either the input or negative impedance, yes, this is absolutely true, it must have a real negative part. जिसका मतलब हुआ कि mod of magnitude of input reflection coefficient should be greater than 1 or magnitude of output reflection coefficient should be greater than 1 because these reflection coefficients जो हैं they depend upon the both these reflection coefficients gamma in and gamma output. These are what? Reflection coefficients. They depend on both source and load matching network. MN मतलब matching network. तो ये दोनों क्या हैं आपके? Input and output reflection coefficients. ठीक है, तो बिल्कुल ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ अ बॉडी कैन रेडिएट एनर्जी टू द मीडियम surrounding it under all conditions invariably. This is false statement. A body is in thermal equilibrium only can radiate energy according to Planck's radiation law. According to Planck's radiation law, it can only radiate energy. The radiating body has to be maintained in thermal equilibrium. जो भी आपकी radiating body है, the body which is radiating heat, the radiating body has to be maintained in thermal equilibrium. Okay. In the microwave region this reduces to, microwave region में this reduces to P is equal to KTB. okay, where K is the Boltzmann constant. इसीलिए ये false है. next question है
The solid area through which all the power radiated by the antenna is beam area, effective area, aperture area और beam efficiency. तो इसका जो right answer होगा वो beam area होगा. Beam area क्या होता है? Beam area is the solid angle through which all of the power radiated by the antenna would stream if it is a solid angle through which all the power radiated, जितनी भी पावर उसके थ्रू रेडिएट होगी बाय द एंटेना, ऑल द पावर रेडिएटेड बाय एंटेना वुड स्ट्रीम, मैं लिख भी देती हूँ डेफिनेशन, would stream if p, that is a function of theta and phi, maintained its maximum value, maintained its maximum value over beam area and zero elsewhere. Okay, so this value is approximately equal to the angles subtended by the half power points. आपने देखा होगा ना, ये मेन लोब होता है. मेन लोब क्या होता है? ये आपने देखा होगा, ये साइड लोब्स होती हैं. when you see the radiation pattern of the power radiated, तो आप देखो ये तो मेन लोब है. दिस इज द मेन लोब where most of the power is radiated. इसमें मैक्सिमम पावर होती है. ओके, तो this value is approximately equal to the angle subtended by the half power points. मतलब ये जो half power points है where the power reduces to 1 by root 2 of its maximum value, तो ये जो half power points हैं of the main lobe in the two principal planes, ये किसके equal होती है? This power is mainly equal to the angle subtended at subtended angle by half power points of the main lobe in two principal planes, whether it is theta and phi, मतलब horizontal plane and vertical plane. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रेसिप्रोकल नेटवर्क Z मैट्रिक्सेस. देखिए आपने रेसिप्रोकल नेटवर्क में क्या पढ़ा है कि Z12 इज इक्वल टू Z21. ठीक है, तो फॉर अ रेसिप्रोकल मैट्रिक्स द इम्पिडेंस मेजर्ड एट पोर्ट Zij, it is equal to the impedance measured at port Ji, means Zij equal to Zji. Since these parameters occupy symmetric positions in the Z matrix, तो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है, इसीलिए यूनिटी भी नहीं होगा, नल भी नहीं होगा, स्क्यू भी नहीं होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. इट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए, माइक्रोवेव में भी आपने एंटीना भी देख लिया है ना. अब इसमें आप देखिए, द मैच्ड नेटवर्क इज प्लेस्ड बिटवीन, मैचिंग नेटवर्क को हम कहाँ रखते हैं? इट इज जनरली प्लेस्ड बिटवीन दी लोड एंड ट्रांसमिशन लाइन. लोड और ट्रांसमिशन लाइन के बीच में रखते हैं इसको, सोर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन के बीच में नहीं रखते. बिकॉज, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है, क्योंकि क्या होता है एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज गीगाहर्ट्ज तक होती है ना, तो एट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन, जो आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस है ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, मैं इसको TL लिखूंगी आगे से, इट मस्ट बी मैच्ड टू दी लोड इम्पिडेंस with which the line is terminated. मतलब आपने पढ़ा ना ZL is equal to Z0 होना चाहिए. Hence to match these impedances, जो match network है, it is inserted between the load and the transmission line. तो source and transmission line या source और load के बीच में it is not kept. Next question है, this is not an example of an isotropic material. देखिए कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. देखिए ये जो आपका फर्स्ट है, ये ट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट, ये एक आपका फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड है. दिस इज अ फेरो magnetic compound. This is a ferromagnetic compound. Aluminium and cobalt जो हैं आपके, ये aluminium है और ये cobalt है. These are the iron oxides. ये क्या हैं? Iron oxides हैं. These are the iron oxides that are anisotropic. Silicon एक non metal है that is isotropic in nature. Silicon क्या है? This is not an example, क्योंकि ये जो है ये non metal है and that is isotropic in nature. आप मुझे कॉपी में कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे what is anisotropic and isotropic material. ठीक है, तो यूट्रियम एल्यूमिनियम गार्नेट इज अ फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड. एल्यूमिनियम कोबाल्ट आर दी आयरन ऑक्साइड्स दैट आर एनाइसोट्रोपिक, जो कि एन आइसोट्रोपिक है. ओके, और सिलिकॉन एक ऐसा नॉन मेटल है दैट इज आइसोट्रोपिक. ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन तो सेमीकंडक्टर होता है ना.
For a transmission line, if the input impedance of transmission line is 100 ohms, okay, and characteristic impedance is 150 ohm, then the magnitude of reflection coefficient is, ये तो आपको पता ही होगा, magnitude of z input minus z naught by z input plus z naught. तो ये वैल्यू क्या होगी, आप इसको, हम इसको मैग्नीट्यूड में भी ले सकते हैं, तो हम इसको 150 माइनस 100 बाय 150 प्लस 100 250 लिख सकते हैं ना. तो इसके कितना हो जाएगा 50 बाय 250, तो ये हो जाएगा कुछ 1/5, दैट मीन्स ये 0.2 के करीब आएगा. तो आंसर इसका 0.2 होगा. ठीक है, तो ये आपको इतना पता होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन वोल्टेज करंट एंड इम्पिडेंस मैट्रिसेस ऑफ ए माइक्रोवेव नेटवर्क. ये तो बहुत आसान है. ये होता है V इज इक्वल टू आई जेड इन माइक्रोवेव नेटवर्क्स एट एनी पॉइंट इन अ नेटवर्क. किसी भी, ये कोई नेटवर्क है मान लीजिए, इस किसी भी पॉइंट पे द वोल्टेज एट अ पॉइंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इम्पिडेंस at that point and current measured. This can be represented in the form of a matrix. ठीक है, next question है आपका, dash of an antenna is a plot of magnitude of far field strength versus position around the antenna. ये किसकी डेफिनेशन बता रहा है, क्या डायरेक्टिविटी की है, बीम विड्थ की है, नहीं, इट इज द डेफिनेशन ऑफ ए रेडिएशन पैटर्न. रेडिएशन पैटर्न of an antenna is actually the plot of the magnitude of far field strength versus position around the antenna. This plot gives the detail regarding the region where most of the energy of antenna is radiated. Where most of energy of the antenna is radiated. Most of the energy of antenna is radiated. Okay, and side lobes and beam width of an antenna. जहाँ पे आपने देखा होगा ना ये रेडिएशन पैटर्न है, तो ये मैक्सिमम लोब, मेन लोब होता है. तो मोस्ट ऑफ द, दिस इज दैट पार्ट ऑफ द रीजन वे मोस्ट ऑफ द एनर्जी और पावर ऑफ द पावर सिग्नल ऑफ द एंटेना इज रेडिएटेड. साइड लोब्स एंड बीम विड्थ ऑफ एन एंटेना, यहाँ पे साइड लोब्स भी पता चलती है कि साइड लोब्स होती हैं और ये मेन लोब होती है, और बीम विड्थ मतलब ये भी डिटरमाइन करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the plot of frequency versus S11 parameter for a tapered line coupler has a dip at the frequency at which it is designed. देखिए टेपरिंग मतलब होता है कहीं से आपने उसको ट्विस्ट, थोड़ा सा आपने उसको टेपर कर दिया है, थोड़ा सा काट के उसको टेढ़ा कर दिया. व्हेन पोर्ट 1 ऑफ अ टेपर्ड कपलर इज एक्साइटेड, जैसे कोई भी आपका टेपर्ड कपलर है, दिस इज अ टेपर्ड कपलर. ठीक है, मान लीजिए इसके 4 पोर्ट्स हैं, 1 2 3 4. तो जब पोर्ट 1 इसका आपने टेपरिंग कर दी है इसकी, मतलब उसको कट करके उसको वहां से मोड़ के कुछ सिग्नल आप लीक कर रहे हो या कहीं से कुछ कर रहे हो, तो नो पावर फ्लोज बैक टू पोर्ट 1 सिंस द पोर्ट्स आर मैच्ड. व्हेन द पोर्ट 1 इज टेपर्ड, नो पावर फ्लोज बैक टू पोर्ट 1. ठीक है, सिंस द पोर्ट्स आर मैच्ड, इसलिए जो S11 वैल्यू होती है ये ऑलमोस्ट जीरो होगी या नेग्लिजिबली स्मॉल होगी, और हेंस इसका डिप क्यों होता है, व्हाई देयर इज अ डिप एट द फ्रीक्वेंसी एट विच इट इज डिजाइंड, क्योंकि S11 जीरो है. नो पावर फ्लोज बैक टू द पोर्ट 1. आपने अपना ये, जब हम लोग एडवांस डिजाइन सॉफ्टवेयर कर रहे थे ADS पे, जब जैसे हम उसका ग्राफ देखते हैं इस पैरामीटर का, तो डिप आता है. तो ये इसीलिए क्योंकि वो नेग्लिजिबली स्मॉल होता है, इनपुट रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होता है ना S11. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन इज 50 ओम and the inductance of transmission line is 25 millihenry per meter, the capacitance of the lossy transmission line is, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि Z0 is equal to under root L by C, यही होता है ना. अब आपको इसमें वैल्यू निकालिए, Z0 स्क्वायर इज इक्वल टू L बाई C, तो C की वैल्यू L बाई Z0 स्क्वायर हो जाएगी ना. तो L की वैल्यू 25 मिली हेनरी पर मीटर और Z0 स्क्वायर इज व्हाट 50 इंटू 50. आफ्टर सॉल्विंग दिस व्हाट यू विल गेट, बहुत इजी क्वेश्चन है. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 10 माइक्रोफाराड. योर आंसर विल कम आउट टू बी 10 माइक्रोफाराड. नेक्स्ट है MMICs, मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स. यही होता है ना, हैव हायर सर्किट फ्लेक्सिबिलिटी एज कंपेयर टू अदर MIC, माइक्रोवेव इंटीग्रेशन फैब्रिकेशन मेथड्स. इज इट ट्रू? यस, सिंस द फैब्रिकेशन जो आपका ये फेट होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, फेट्स इन MIC डिज़ाइन में, MMIC डिज़ाइन में जब हम इसका फेट का
किसी ट्रांजिस्टर का फैब्रिकेशन करते हैं तो सर्किट फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है with only little additional cost and the requirement for the fabrication of entire device is prevented. मतलब entire device की हमें fabrication करने की no need to fabricate no need to fabricate the entire device. इसको मतलब हम प्रिवेंट भी करते हैं क्योंकि इसमें जो कॉस्ट होती है लो होती है, कॉस्ट काफ़ी लो हो जाती है और उसकी परफॉर्मेंस भी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन अ लैंज कपलर हैविंग फोर लाइंस द एडजेसेंट लाइंस आर कनेक्टेड सो एज टू एक्ट एज टू कंडक्टर्स इन पैरेलल. देखिए लैंज कपलर में क्या होता है, देयर आर फोर लाइंस. ठीक है. एंड द ऑल्टरनेटिंग लाइंस आर कनेक्टेड टुगेदर. जो आपकी ऑल्टरनेटिंग लाइंस होती हैं, ऑल्टरनेटिंग लाइंस आर कनेक्टेड टुगेदर. ऑल्टरनेटिंग लाइंस को हम कनेक्ट करते हैं. दिस सिंप्लीफाइज द कंप्यूटेशन एफर्ट फॉर फाइंडिंग. इससे क्या होता है कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, द कैलकुलेशन ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिकम्स इजी एंड द कंस्ट्रक्शन बिकम्स सिंपलर. इसकी जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाती है एंड कंस्ट्रक्शन बिकम्स सिंपलर. जो आपकी कंस्ट्रक्शन है इट गेट्स सिंपलर. पोर्ट्स भी इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं एंड हैंस इन फ्लो ऑफ पावर, ये रिक्वायर्ड डायरेक्शन होती है. पोर्ट्स आर इजीली डिस्टिंग्विश्ड. ठीक है. जो आपके ये इनपुट पोर्ट आउटपुट पोर्ट्स होते हैं, दे हेल्प इन द फ्लो ऑफ पावर एंड हेल्प इन फ्लो ऑफ पावर इन रिक्वायर्ड डायरेक्शन. इन रिक्वायर्ड सही दिशा में पावर को फ्लो कराने में ये पोर्ट्स फिर हेल्प करते हैं. तो इसीलिए इसका लैंज कपलर में जो कह रहा है एडजेसेंट लाइंस कनेक्टेड होती है, स्टेटमेंट गलत है. सो एज टू एक्ट एज टू कंडक्टर्स इन पैरेलल. ऑल्टरनेटिंग लाइंस को इस तरह से कनेक्ट करते हैं कि जिससे कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है उसकी कैलकुलेशन उसको फाइंड आउट करने में हमें इजी हो और कंस्ट्रक्शन सिंपलर हो जाए. एंड पोर्ट्स भी इजीली डिस्टिंग्विश हो जाते हैं जिसकी वजह से फ्लो ऑफ पावर गेट्स flow of power becomes simpler to flow in the required and desired direction. Next question is, quarter wave transformers cannot be used for non-TEM. TEM means transverse electromagnetic. For non-TEM lines for impedance matching, तो ये true है. क्वार्टर वेव ट्रांसफॉर्मर्स को हम नॉन टीएम लाइंस के लिए यूज नहीं कर सकते. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इम्पिडेंस मैचिंग, क्योंकि जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है आपको पता है अल्फा प्लस जे बीटा. जो प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ वेव आपका गामा शुड बी इक्वल टू जे बीटा होना चाहिए. प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो होता है इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर नॉन टीईएम लाइंस के लिए. नॉन टीईएम लाइंस के लिए जो आपका प्रोपेगेशन कांस्टेंट है इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी. ओके. एंड वेव इम्पिडेंस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट. और जो आपका वेव इम्पिडेंस है ये कैसा होता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है. तो दीज फैक्टर्स कॉम्प्लिकेट द बिहेवियर ऑफ क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर फॉर नॉन टीएम लाइन, जिसकी वजह से क्वार्टर वेव ट्रांसफार्मर्स को नॉन टीएम लाइंस के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि नॉन टीएम लाइंस में जो गामा होता है या गामा इज इक्वल टू जे बीटा फॉर वेव प्रोपेगेशन चाहिए. तो जो लीनियर जो गामा है इट इज नॉट अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेव इम्पिडेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the electric field applied to gallium arsenide specimen is less than the threshold electric field, when the electric field applied to, yes, it is less than the threshold electric field, the current in the material is increasing linearly, decreases linearly, increases exponentially or decreases exponentially. तो ये होगा increases linearly. When the electric field applied, ये आपका applied electric field है, when it is less than the threshold value of the electric field, that means the critical value से जब ये कम है, तो जो electrons होते हैं they jump, electrons jump from valence band to primary valley, from valence band to primary valley of conduction band and current increases linearly with electric field. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. इस कंडीशन में आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे ये वैलेंस बैंड होता है और यहाँ पे कंडक्शन, यहाँ पे एक लोअर वैल्यू होती है एक अपर वैल्यू होती है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू द प्राइमरी वैल्यू ऑफ कंडक्शन बैंड एंड देयरबाय द करंट इंक्रीजेस लीनियरली विद इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो ये आपको पता हो गया, इजी है ना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एज WR स्टैंडिंग वेव रेशियो हैज टू बी डैश फॉर कोएक्सियल कनेक्टर, हायर द वैल्यू ऑफ स्टैंडिंग वेव रेशियो, more is the reflection,
मोर इज द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है जितना ज्यादा एस की वैल्यू होगी, विच इंप्लाइज मिसमैच कंडीशन इज देयर, जहां पे मिसमैच होगा, hence the standing wave ratio low होना चाहिए. तो standing wave ratio has to be low for coaxial connector. Next question है, the one below is the only microwave network element that is a TEM line. Coaxial cable, rectangular waveguide, circular waveguide, surface waveguide. देखिए coaxial cable जो होता है it supports TEM mode of propagation in them, और जो rectangular, circular और surface waveguides हैं they don't support TEM, ये TEM mode नहीं support करते, don't support TEM mode of propagation in them. ठीक है, तो इसमें देखिए द ओनली माइक्रोवेव नेटवर्क एलिमेंट ये कोएक्सियल केबल है, दिस इज द TEM, इसमें TEM वेव प्रोपेगेट करती है, इसलिए इसने बोला है कि जो TEM ओनली वन का मतलब जो कि TEM मोड को सपोर्ट करती है. रेक्टेंगुलर में कौन सी मोड होती है, TE और TM होता है ना, तो दैट इज द केस. तो देखिए इसमें कितने सब्जेक्ट्स आ गए, इसमें आपका माइक्रोवेव आ गया, इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन एंड वेवगाइड्स आ गया, इसमें आपका एंटीना आ गया, EMFT आ गई, है ना. तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं ये 4 सब्जेक्ट्स इसमें, 5-6 सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने ट्रांसमिशन लाइन वेवगाइड्स भी पढ़ाई है, ये अलग सब्जेक्ट होता है, इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, वेवगाइड्स हैं, रेजोनेटर्स हैं, जो भी आपका ये एंटीना भी तो है इसमें, माइक्रोवेव अलग से है, तो ये सारे इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं. ठीक है, तो इसके तो हर मतलब क्वेश्चंस आप लगा लीजिए, कम से कम एक सब्जेक्ट के जैसे बोलते हैं ना 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, आप लगा लीजिए 20 क्वेश्चन तो ये चारों सब्जेक्ट मिला के आ ही जाएंगे 20 से ऊपर. ठीक है, तो मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछा था होमवर्क में, विच मेथड इज प्रेफर्ड इन मैग्नेटिक टेक रिपोर्टिंग, तो इसका आंसर है NRZM. ये जो नॉन रिटर्न टू जीरो है M, एक NRZ लार्ज है, NRZ स्मॉल है, NRZM इट इज यूज्ड फॉर डिफरेंशियल इनकोडिंग, ये डिफरेंशियल इनकोडिंग भी बोलते हैं इसको, also known as differential encoding. तो this method is preferred in magnetic tape recording. तो till then आपको अगर पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो, प्लीज़ हेल्प मी टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स. प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जितना मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे मेरे अंदर एम्पावरमेंट बढ़ेगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और कमेंट सेक्शन में जो होमवर्क देती हूँ वो भी करिएगा. टिल देन थैंक यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.